students, our chapter number 2 of mathematics. First is matrices. Dear students, as we learn in 11th standard that a rectangular arrangement of m into n numbers in m rows and n columns enclosed in a rectangular or curve bracket is called a matrix of order m by n. That means m into n नंबरात का अरेंजमेंट तरतीब लगाना इन m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज और n कॉलम्स में m इंटू n नंबरात को तरतीब से लगा देना, इंक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगुलर और कर्व ब्रैकेट, और उसे रेक्टेंगुलर और कर्व ब्रैकेट से बंद कर देना, उस अरेंजमेंट को इज कॉल्ड a matrix of order m by n, where m is number of rows and n is number of columns. m जो है रोज की तादाद बताएगा और n जो है कॉलम्स की तादाद बताएगा. For example, a matrix A is arrangement of 6 numbers 1, 3, 7, 9, 8, 4. Here 6 elements of this matrix, that means 6 numbers are arranged in 2 rows. Therefore, value of m is 2. And 3 columns, therefore, value of n is 3. Therefore, order of this matrix is 2 by 3. Also, we studied in 11th standard that a matrix itself does not have value. हम मैट्रिक्स की, किसी मैट्रिक्स की एक नंबर में वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. ये 11th में हमने लर्न किया था. जैसा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम एक नंबर में निकाल सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं नंबर में, हम इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू एक नंबर में नहीं निकाल सकते. हमने ये 11th में लर्न किया था. Also, we studied in 11th that there are different types of matrices. Matrices की अलग अलग टाइप्स हैं. For example, row matrix, column matrix, identity matrix, scalar matrix, square matrix, null matrix, skew symmetric matrix, symmetric matrix, etc. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हमने वहां देखी थी. Also, we studied that the algebra of matrices are there in 11th standard. हमने algebra of matrices भी देखा था 11th standard में. For example, addition of 2 matrices, 2 matrices का addition, subtraction of 2 matrices, multiplication of 2 matrices, scalar multiplication of a matrix, determinant of a matrix. ये सारा हमने वहां लर्न किया था कि कैसे 2 मैट्रिसेस का एडिशन किया जाता है, कैसे 2 मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कैसे 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कैसे एक मैट्रिक्स को कोई स्केलर रियल नंबर से, नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, कांस्टेंट से, और किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेके उसकी वैल्यू निकाली जाती है, यानी वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर उसके उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो हम उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये सब बात हमने
पीछे 11th में लर्न किया था। Also, we learn in 11th that matrix is useful in economics, computer science, banking system, operation research, in atomic physics and in statistics. That means matrices are useful in almost in all branches of sciences. साइंसेस की बहुत ढेर सारी ब्रांचेस में तकरीबन तमाम ब्रांचों में मैट्रिसेस का जो है यूज होता है। हमने ये सब बात 11th में लर्न किया था। नाउ हियर इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न द uses of matrices with the help of elementary transformation and inverse of a matrix। हम यहां मैट्रिसेस का यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स की मदद से कैसे किया जाता है वो यूज हम यहां पे देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। Elementary transformations are 6 operations. 3 are due to rows and 3 are due to columns. Out of which number 1 is interchange of any 2 rows or interchange of any 2 columns. If we interchange Ri with Rj and Rj with Ri, then it is symbolically denoted as like this or like this Rij. For example, A is a matrix of order 2 by 2, 2 minus 4, 6, 8. Here in this matrix A, there are 2 rows and we can interchange R1 by R2, R2 by R1. This operation is allowed and it is called as interchange of 2 rows. ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अलाउड है। 2 रोज को एक दूसरे से हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हमको अलाउड है और इसको कहा जाता है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज। एंड दिस ऑपरेशन गिव्स न्यू मैट्रिक्स। हम फर्स्ट रो को सेकंड रो से रिप्लेस कर रहे हैं और सेकंड रो को फर्स्ट रो से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी ये रो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो की जगह पर हम लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटरचेंज करेंगे और सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स ये फर्स्ट रो को हम सेकंड रो से रिप्लेस करेंगे और सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो से रिप्लेस करेंगे। इस ऑपरेशन के बाद जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का इक्वल नहीं होगा, यानी हम इसको ए को हम इस ऑब्टेन मैट्रिक्स के इक्वल नहीं बोल सकते हैं। यानी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए और ऑब्टेन मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, बल्कि ये ऑब्टेन मैट्रिक्स ए का इक्विवेलेंट होगा और सिंबॉलिकली हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, A is equivalent to the obtained matrix after the operation। ये A का इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं बोल सकते हम। ये ऑब्टेन मैट्रिक्स A का हरगिज इक्वल नहीं होगा। इस ऑपरेशन के बाद हमारा ये एक बात भी कॉलम ऑपरेशन भी
हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज, दो कॉलम को भी एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, ये ऑपरेशन भी आपको अलाउड है। आप दो कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम दो रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं, दो कॉलम को भी एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम CI ith कॉलम को jth कॉलम से रिप्लेस कर सकते हैं, jth कॉलम को ith कॉलम से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी I नंबर के कॉलम को J नंबर के कॉलम से और J नंबर के कॉलम को I नंबर के कॉलम से, यानी दोनों कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। सिंबॉलिकली हम उसे इस तरीके से डिनोट करेंगे या सिंबॉलिकली हम उसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसी मैट्रिक्स के अंदर हम अगर कॉलम ऑपरेशन भी करना चाहें, यानी कॉलम नंबर 1 को रिप्लेस करें कॉलम नंबर 2 से और कॉलम नंबर 2 को इंटरचेंज करें कॉलम नंबर 1 से, तो यह ऑपरेशन भी अलाउड है। और इस ऑपरेशन से हमें क्या मिलेगा? न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगा, फर्स्ट कॉलम को सेकंड की जगह पे हम लिखेंगे, सेकंड कॉलम को फर्स्ट की जगह पे हम लिखेंगे, फर्स्ट से रिप्लेस करेंगे। यानी ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 को 2 से इंटरचेंज और 2 को फर्स्ट से इंटरचेंज, यानी दोनों कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। तो जिस तरीके से रो ऑपरेशन है, सेम एज इट इज सिमिलर ऑपरेशन रहेगा, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ड्यू टू कॉलम्स। जैसा रो ऑपरेशन है एज इट इज कॉलम ऑपरेशन होगा। तो एक दूसरा दो रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे ही दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स of any row or column by a non-zero scalar, that means if k is a non-zero scalar and the row Ri is multiplied by that constant k, then we have to multiply each and every element of Ri with constant k, and this operation is allowed. It is called as multiplication of the elements of any row by a non-zero constant k or scalar k. For example, A is a matrix -1 having elements -1, 0, 1, 3, and we want to change its second row by this operation. That means if we want to change the row number 2 by multiplying each and every element of row number 2 by 4, then it is allowed, and this operation gives a new matrix. रो के सारे एलिमेंट को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स फर्स्ट रो को हमको कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो में हम चेंज चाहते हैं, और क्या चेंज चाहते हैं? सेकंड रो का हर एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो। दैट मीन्स सेकंड रो है ये, सेकंड रो का फर्स्ट आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 बोले तो 4, और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इज 12। ये ऑपरेशन अलाउड है, और इस ऑपरेशन से जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। वो ए के इक्वल नहीं रहेगा, वो ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा, ए के इक्विवेलेंट रहेगा वो। तो ये ऑपरेशन भी अलाउड है। हम इस ऑपरेशन को एज इट इज सिमिलर तरीके से कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स
हम किसी भी कॉलम को यानी उस कॉलम के किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट को कोई नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी आपके मैट्रिक्स ए में अगर मैं फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, यह अलाउड है। दैट मीन्स मैं इसी को जो है कॉलम नंबर 1 को चेंज कर रहा हूं, कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, -1 से। तो -1 से कॉलम नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये ऑपरेशन मैं यहां कर सकता हूं। और ये ऑपरेशन से ऑब्टेन होने वाला मैट्रिक्स जो रहेगा वो मैट्रिक्स रहेगा कॉलम नंबर 1 के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, 1 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 और सेकंड कॉलम को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वाई इज इट इज। यानी हम ये ऑपरेशन कॉलम में भी सिमिलर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसा रो ऑपरेशन एज इट इज कॉलम ऑपरेशन है। और यह ऑब्टेन जो मैट्रिक्स होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। तो ये 4 ऑपरेशन हमारे हो गए। फर्स्ट ऑपरेशन जो था हमारा इंटरचेंजिंग 2 रोज, वैसे ही सिमिलर ऑपरेशन कॉलम में था इंटरचेंजिंग 2 कॉलम्स। और आपका जो थर्ड और फोर्थ ऑपरेशन था मल्टीप्लीकेशन ऑफ each and every element of any row with a non-zero scalar। और ऐसे ही सिमिलर ऑपरेशन था मल्टीप्लीकेशन ऑफ each and every element of any column by a non-zero constant, non-zero scalar। तो इस तरीके से 4 ऑपरेशन थे आपके। उसके बाद our operation number 3 is adding the scalar multiples of all the elements of any row or column to the corresponding elements of any other row or column। That means if k is a non-zero scalar and k multiples of Ri are to be added to the elements of Rj, then it is denoted as Rj is changed with Rj plus k Ri। दैट मीन्स हम किसी एक रो के पूरे एलिमेंट को कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम उसे किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, और फाइनली जो चेंज दिखाई देगा जिस रो में हम उसे ऐड कर रहे हैं यानी Rj, हम उसी में वो चेंज दिखाई देगा। दैट मीन्स Rj में सिर्फ चेंज होगा, Ri में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। Ri के एलिमेंट को नॉन जीरो कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई वहां Ri में दिखाई नहीं देना चाहिए, और वो मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे Rj के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में। यानी सारा ऑपरेशन फाइनली कहां हो रहा है, Rj में हो रहा है, यानी Rj में चेंज दिखाई देगा, Ri में कोई चेंज दिखना नहीं चाहिए, वाइज इट इज रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल हमारा मैट्रिक्स ए है, 7, 10, 3, 4। इस मैट्रिक्स के हम रो नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करें तो फाइनल ऑपरेशन रो नंबर 3 में होगा, रो नंबर 2 में होगा, रो नंबर 2 चेंज होगी। क्या कर रहे हैं हम? रो नंबर 2 में ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? रो नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट मीन्स 2r1 करके उस r1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके r2 में ऐड कर रहे हैं। फाइनल ऑपरेशन r2 में हो रहा है, r2 में चेंज दिखाई देगा। दिस ऑपरेशन गिव्स अ न्यू मैट्रिक्स। r1 के एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 2 14, 14 इसमें 3 में प्लस होगा, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 17। ऐसे ही R1 में ये 10, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इसमें ऐड होगा, ये बन जाएगा 24। दैट मीन्स R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और उसको उठा के R2 में प्लस किया था, R2 में चेंज हुआ, R1 एज इट इज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। ये ऑपरेशन अलाउड है। किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उससे ऐड किया जा सकता है। ये ऑपरेशन अलाउड है। और जिस रो में हम फाइनल ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का, उसी रो में चेंज होगा, और जिस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो मल्टीप्लाई मैन्युअली करेंगे हम। और ये जो ऑब्टेन मैट्रिक्स है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या रहेगा? इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट कहेंगे हम उसे। A is equivalent to the obtained matrix. सेम सिमिलर ऑपरेशन हम कॉलम में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी एक कॉलम के पूरे एलिमेंट किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली होगी, वहां उस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन जिस कॉलम का कर रहे हैं हम नॉन जीरो स्केलर से, उस कॉलम में कोई चेंज नहीं दिखाई देना चाहिए। और उसे उस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम ऐड करेंगे। जहां फाइनल ऑपरेशन एडिशन का होगा, उसी कॉलम में सिर्फ चेंज दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी आपके मैट्रिक्स ए में अगर हम ऐसा करना चाहें, कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट को मैं चेंज करना चाह रहा हूं, क्या करके कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम पहले कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 1 में ऐड करना चाह रहे हैं, तो कॉलम नंबर 1 में चेंज करना चाह रहे हैं, कॉलम नंबर में 1 में ऐड कर रहे हैं हम, कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम कर सकते हैं। हम ये ऑपरेशन करके हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, वो न्यू मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2 27 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 27। इसी तरीके से कॉलम नंबर 2 में 4 भी है, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उसे ऐड करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 इस 3 में ऐड होगा, 8 प्लस 3 दैट मीन्स 11, यानी कॉलम नंबर 1 होगा 10, 4। इस ऑपरेशन से जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का क्या रहेगा? इक्विवेलेंट होगा। तो ये 6 ऑपरेशंस थे, 3 ऑपरेशन ड्यू टू रो थे और 3 ऑपरेशन ड्यू टू कॉलम थे। जैसे 3 ऑपरेशन रो के हैं, सिमिलरली वैसे ही 3 ऑपरेशन कॉलम करेंगे। तो पहला ऑपरेशन था हमारा इंटरचेंजिंग 2 रोज, 2 रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन था किसी एक रो के तमाम एलिमेंट्स
किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी एक रो को कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके पूरे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे और वो कांस्टेंट नॉन जीरो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तीसरा ऑपरेशन था हमारा किसी एक रो के पूरे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके एलिमेंट्स को दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करके उस रो में हम चेंज कर सकते हैं। ये तीन ऑपरेशन रो ऑपरेशन था और एज इट इज तीन कॉलम ऑपरेशन है। इनके अलावा कोई चौथा ऑपरेशन नहीं है। ये तमाम ऑपरेशंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। अगर वो रो ऑपरेशन है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू रो ऑपरेशन कहलाएगा, और अगर वो कॉलम ऑपरेशन है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। तो इसका यूज करके हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को हमें पक्का करना है।